So even if our parents don't need help from us, we're still going to do it. Why? Because we need it. Because it opens a blessing from God on our life to live well and to live long. हमें उन्हें फाइनेंशियली मदद करनी चाहिए, चाहे उन्हें ज़रूरत हो चाहे ना हो, उससे हमें ब्लेसिंग मिलती है. And I'm doing it because I want to see God, and I like obeying God's word. And especially when we know that there's a promise behind it. And the promise says we will live well and we will live long. मैं चाहती हूँ प्रभु देखे कि हम इस वादे में कदम रखते हैं कि मैं स्वस्थ रहूंगी और लंबी आयु जीऊंगी. Amen. So in the same way we need our earthly parents, our mom and dad. That's the same way we need our spiritual parents in Christ. इसी प्रकार हमें हमारे मसीह जीवन में भी स्पिरिचुअल फादर एंड मदर की जरूरत है. Amen. Because a spiritual father, they cover us in their prayers spiritually. वो हमें कवर करते हैं, वो हमें प्रोटेक्शन देते हैं. They give us the spiritual food. They pray for our breakthrough, for our growth, for our healing, for our deliverance. वो हमारी ग्रोथ के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी कवरिंग के लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारे फूड के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए. They teach us and they correct us in love. स्पिरिचुअल फादर और मदर हमारी ग्रोथ के लिए प्रेयर करते हैं, हमारी प्रोटेक्शन, हमारी कवरिंग, हमारे फूड के लिए, हर एक चीज के लिए प्रेयर करते हैं. Amen. So even in Bible in 1 Corinthians 4:16, Paul, he said, I'm the father in Christ. And when he was speaking to Timothy, he called him a son in the Lord. इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो. 1 Corinthians 4:16. And the same way, Elijah, he had Elisha, and when Elijah was taken to heaven, Elijah was there and he was waiting on a mantle to fall on him, and he inherited a double portion just because he was serving his spiritual father Elijah. एलिया का स्पिरिचुअल सन अलीशा था और एलिया अलीशा का स्पिरिचुअल फादर था. So our spiritual fathers are there to teach us, to guide us, to help us mature, and above all to cover us spiritually and to protect us spiritually. हमारे स्पिरिचुअल फादर हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना उसमें मदद करते हैं. प्रभु के द्वारा दी गई आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए जो हमें हमारे स्पिरिचुअल फादर बताते हैं. Amen. So Apostle Paul, he said in the Bible, follow our example. So we are to follow their example, to learn from their wisdom, to get their impartation, anointing. हमें बाइबल में जो आज्ञा दी गई है उसको फॉलो करना चाहिए, तभी हमें अनॉइंटिंग मिलती है. Amen. So we'll give a testimony. When I was in Jalander in 2016, a family, we met Pastor Bajinder, and he had a word of knowledge and a prophecy over us. जब मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी से मिली 2016 में जलंधर में, तब उन्होंने मुझे प्रभु के द्वारा कुछ बताया. He prayed for us and he had very accurate word. God even revealed him that I had a car accident and that God saved me because he wants me in his business. प्रभु ने प्रॉफिट जी के द्वारा मुझे बताया कि प्रभु चाहते हैं कि मैं सेवकाई में खड़ी हूँ, और प्रभु ने प्रॉफिट जी के द्वारा मेरी जीवन की एक बहुत मतलब एग्जैक्ट चीज बताई कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था और उसमें प्रभु ने मुझे बचाया. And God revealed him that God is good, amen. And God revealed him that my calling is to preach and to pray for people to see them healed and delivered, and he prayed for impartation and anointing. और प्रॉफिट जी ने बताया कि प्रभु चाहते हैं कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूं और मैं एक पास्टर बनूं. And soon as I got back home, और जैसे ही मैं यूरोप वापस गई, back to Europe, my uncle was in hospital and he was dying. He was on a sick bed for 4 months. मेरे अंकल जो कि बहुत बुरी हालत में थे, जो बहुत बीमार थे पिछले 4 महीने से. And the whole morning I had a verse, get up and walk, get up and walk. Jesus didn't pray long prayers. He would just say, get up and walk. और मैंने उनके लिए प्रार्थना करी और 2 हफ्ते के बीच में वो हॉस्पिटल से बाहर आए. Hallelujah. Amen. And God healed my uncle, and that was the first of the miracles that then started
And I'm really thankful for the prayers and for the anointing and for everything that happened through it. और मेरे साथ और वो मेरा पहला मिरेकल था प्रभु के द्वारा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि जो भी हुआ उन सब चीज़ों के लिए। और वो अनॉइंटिंग जब प्रॉफिट जी ने मेरे लिए प्रार्थना करी जलंधर में, उसके बाद मुझे वो अनॉइंटिंग मिली। Amen. And that is the spiritual covering and the spiritual anointing we receive from our spiritual fathers. वो ही एक स्पिरिचुअल कवरिंग प्रोटेक्शन अनॉइंटिंग है जो कि हमें हमारे स्पिरिचुअल फादर से मिलती है। Hallelujah. God is good. So we'll read from 2 Kings 5:10 to 11 and 13 to 14. So Naaman went to Elisha because he had skin issues. And Elisha was a prophet and he had a word from God. He didn't pray for him. All he said was, "Go and wash in a Jordan River 7 times. Then your skin will be healed and you will be clean." But he got angry and he didn't want to do it. तब अलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित होकर यह कहने लगा, मैंने तो सोचा था कि अवश्य मेरे सिर पर हाथ रखेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा, मेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। लेकिन इसी के 14 में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वह चंगा हो गया, शुद्ध हो गया। Hallelujah. Amen. So he was angry, but then thank God he had good advisors who said, "Why don't you do it? Why don't you go to the river and do as prophet prophesied over you? You've got nothing to lose." नमान गुस्से में वहां से चला गया। नमान गुस्से में वहां से चला गया और उसके नौकर ने उससे कहा कि इसमें तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, एक बार तुम ट्राई करो, तुम जाके पानी में डुबकी मार लो 7 बार, जैसा प्रॉफिट ने तुम्हारे लिए भविष्यवाणी की है, एक बार उनकी बात मान लो। So even though he had pride issues, he listened and he went back to the river Jordan to have bath 7 times and his skin got completely healed. और उसने उसकी बात मानकर वापस नदी में गया और उसने 7 बार डुबकी मारी और वो चंगा हुआ। Yes, hallelujah. Amen. It is so important to obey the prophetic word. That's why God gave prophets. नमान 7 बार डुबकी लगाने से पानी में चंगा नहीं हुआ, वो चंगा इसलिए हुआ क्योंकि उसने बात मानी प्रॉफिट की, उसने अपने स्पिरिचुअल फादर की बात मानी। Amen. Because आप भी चंगे तभी होते हैं जब आप अपने स्पिरिचुअल फादर की बात मानते हैं, परमेश्वर के द्वारा जो बात आती है। Satan likes to use offense and anger so that we would stop and we would not go and receive what God has for us. So if Naaman went angry and if he didn't do what he was told, he would never receive his healing. अगर नमान अपने नौकर की बात ना सुनता, अगर वो पानी में डुबकी ना मानता, अगर वो प्रॉफिट की बात ना मानता, तो वो कभी चंगा ना होता, क्योंकि शैतान ने उसको उस गुस्से में भर दिया था। So God will not do the things the way we want. He always does it differently the way he wants. प्रभु हमार जो जिस वे से हम चाहते हैं कि हम जिस वे से चंगे हो, प्रभु हमें उस वे से चंगा नहीं करता, बल्कि हमें वेट करना चाहिए कि प्रभु जिस वे से चाहता है हमारी लाइफ में चीजें उस तरीके से हों। Amen. That's why it's important to be obedient and to have faith. Sometimes we'll receive healing through the laying hands, sometimes through the prayers, sometimes we'll just receive it directly from God. हमें कभी भी गुस्सा नहीं होना चाहिए शैतान के द्वारा, मतलब शैतान आपको कई बार आता है आपको परेशान करने, लेकिन आपको शैतान की बात नहीं माननी चाहिए। और आपको देखो प्रभु आपको अलग अलग तरीके से ब्लेसिंग्स देता है। कभी प्रॉफिट जी आपके सर पे हाथ रखते हैं, कभी आप ब्लेसिंग ऐसे ही रिसीव कर लेते हैं, कभी प्रॉफिट जी बोलते हैं तो आप उसको बिलीव करते हैं, फेथ रखो प्रभु पे, तभी आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। Hallelujah. So the point is, if Naaman left angry and if he disobeyed what prophet said, he would have never received his healing. जो प्रॉफिट ने कहा, अगर वो वहां से गुस्से में चला गया और अगर वो दोबारा ना आता, प्रॉफिट की बात ना मानता, तो वो कभी चंगा ना हो पाता। And it is such a great blessing to have prophets with you. ये कितनी अच्छी ब्लेसिंग है कि आपके पास प्रॉफिट जी जैसे प्रॉफिट हैं इंडिया में।
Amen. Amen. Prophet G, आपके पास कितने अच्छे फादर हैं। he's a blessing not just for you here in India, but for us when he comes over to United Kingdom and to America and other countries. और ये ब्लेसिंग सिर्फ आपके ऊपर ही नहीं है, ये ब्लेसिंग हमारे ऊपर भी आती है जब प्रॉफिट जी हमारी कंट्री में आते हैं, यूके में आते हैं, यूएसए में आते हैं और या फिर किसी और कंट्री में जाते हैं। Yes, hallelujah. Amen. And even here, I've seen so many people from different countries coming to visit Prophet and receiving the word of prophetic word. और मैंने यहाँ पे भी देखा है लोग कितने दूर दूर से आते हैं सिर्फ चर्च अटेंड करने, प्रॉफिट जी से ब्लेसिंग्स लेने। And we thank God for Prophet G, and we thank God for this church, and we just leave you with a message: obey the word of God to line up in fullness, so you can receive from the Lord what He has for you in fullness. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रॉफिट जी के लिए, इस चर्च के लिए। और आज का मेन टॉपिक यही है कि हमें अपने स्पिरिचुअल फादर के, अपनी मिनिस्ट्री के, प्रभु के अधीन रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। Amen. May God bless you mightily. Amen. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Lord, for all the ones who've gathered here. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, और जितने लोग यहाँ पर आए उन सब के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord, for your presence here and for your anointing in this place. प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी प्रेजेंस के लिए यहाँ पे और आपकी अनॉइंटिंग के लिए यहाँ पे। Lord, Father, touch everyone, touch their heart, visit them now in Jesus' mighty name. प्रभु यहाँ पे हर एक जन को आप टच करो प्रभु जी और हील करो यीशु मसीह के नाम से। Speak to their hearts, Lord. Touch their hearts, Lord. Change them, Lord. प्रभु जी आप उनसे बात करो, उनको चेंज करो प्रभु जी, उनके दिल से बात करो, आप उनके दिल को छुओ प्रभु। Help their unbelief, Lord. Help them see you, Jesus, walking there to touch your garment and to receive their healing in Jesus' name. प्रभु जी आप उन सबको छुओ प्रभु जी और छूकर चंगा करो। Holy Spirit, enter their hearts. Guide them, lead them, teach them. हॉली स्पिरिट उनके दिल में जाओ प्रभु जी, जाने पाए प्रभु जी, और प्रभु जी इन सब के मनों की बात प्रभु जी पूरी हो प्रभु। Amen. Would you fill them now, all of them, in Jesus' mighty name? प्रभु जी मेरी इस प्रार्थना को आप स्वीकार करो प्रभु जी, और इन सब को प्रभु जी आप छुओ यीशु मसीह। Amen. आमीन। Amen. प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु जी। आज इतने सारे लोग आए प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। क्रिसमस पे भी प्रभु जी जितने लोग आए उन सबको आप आशीष देना प्रभु जी, और न्यू ईयर पे जितने लोग आ रहे हैं उन सबको प्रभु जी इनके रुके हुए काम खुलने पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी जितने लोग यहाँ पर आके भरोसा करते हैं प्रभु जी इन सबको आप आशीष देना प्रभु जी, ये 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, 100 गुना आशीष के साथ वापस आने पाए। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक चीज के लिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आमीन। Amen. Amen.